Hello, good morning, everyone. A very good morning and very warm welcome to each and every participants over here. I am Manish Sharma, audiologist trainer with Widex India Private Limited, Mumbai. And today, on 3rd March 2021, on the occasion of World Hearing Day, we have scheduled a Facebook Live with some eminent personalities across India to answer some of the basic queries and the concern of many of our participants all across the globe. And today, to answer such question, we have a most important and the eminent personality of our industry, Ms. Devangi Dalal ma'am. Uh, to introduce her, I would say she has a vast experience. She is a leading audiologist and speech language pathologist who is practicing for more than 29 years. And she is the first and the only Indian and the only audiologist to get a humanitarian award in 2012 from American Academy of Audiology. Also, she is the first Indian advocate and a part of advocacy committee for CGHS, Coalition of Global Hearing Healthcare, in association of World Health Organization. At present, she is the national coordinator for private practitioners of audiology in India, special interest group by Indian Speech and Hearing and Hearing Association. She is the co-founder of Josh Foundation, and her NGO has helped almost more than 1200 I would say poor kids from across all over hearing impaired schools with a digital hearing aid, and that has been provided free of cost to all those children's, considering their amount and the degree of hearing loss. It has been fitted appropriately by the hands of own Ms. Devangi Dalal ma'am, and she has provided many platforms to flourish their inner talent. During the time of pandemic, she has been an active blogger and author who wrote a book titled Spreading Positivity to develop a positive approach among all of us in those difficult times. And these are some of the points which I would like to mention about her. If I start talking in detail, a 30-minute session would not be enough to introduce her. So I'll just take a halt here, and I would like to introduce Ms. Devangi Dalal ma'am so that she can take over this session and answer some of the basic questions and the queries which we have received from our forums. So ma'am, I would like to welcome you on behalf of Widex India Private Limited. Thank you for giving us your time. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मनीष, मुझे अच्छा इंट्रोडक्शन करने के लिए। और जो ऑडियंस हमें सुन रही है, सबसे पहले नमस्ते। आज वर्ल्ड हियरिंग डे है, 3 मार्च। फर्स्ट ऑफ काइंड WHO से आज वर्ल्ड हियरिंग रिपोर्ट डे पब्लिश होने जा रहा है। और वर्ल्ड रिपोर्ट डे के हिसाब से करीब 430 मिलियन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और करीब 2050 तक 700 मिलियन पीपल हो सकते हैं, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WHO की तरफ से, CGHS की एडवोकेसी कमेटी के हिसाब से, इंडियन स्पीच एंड लैंग्वेज हियरिंग एसोसिएशन के नेशनल कोऑर्डिनेटर के हिसाब से, और एज एन ऑडियोलॉजिस्ट जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, सबसे पहले वर्ल्ड हियरिंग के डे के लिए आपको ग्रीटिंग्स मैं स्पेशल भेजना चाहती थी हमारे सारे ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ से। और हियरिंग यहाँ पे लिखा है, हियरिंग इज अ प्रेशियस गिफ्ट। सो मैं चाहती हूँ कि जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है, आप अपनी हियरिंग को एंजॉय करिए, उसे सेफ रखिए। और देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड प्लेजर ऑफ हियरिंग, एंड वी ऑल ऑडियोलॉजिस्ट अक्रॉस द ग्लोब want you to have a pleasure of hearing, and that's why we are here. Thank you ma'am. With that, I would like to take our first thing which we have received from many of our forums. But before that, like we all know, hearing and communication is a most precious gift, and it's very important in our day-to-day life. So I would like you to help us understanding how our auditory system works. How does a hearing works, our entire auditory system from our pinna to our brain. सो ये बताने के पहले मैं सबसे जो ऑडियंस हमें सुन रही है, वो एक डेफ बच्चा था, उसको पूछा गया था कि आप कहाँ रहते हो, तो उसने बोला मैं रहता हूँ अंधेरी। अंधेरी आता है मुंबई, मुंबई आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र आता है इंडिया, इंडिया जो आता है एशिया में, एशिया जो आता है अर्थ पे, अरे वर्ल्ड पे, और वर्ल्ड जो है अर्थ मैप है। और मैं अपना एग्जिस्टेंस बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आई लिव ऑन दिस अर्थ। व्हाट अ इंस्पिरेशन हम
ऑडियोलॉजिस्ट को इन बच्चों से मिलता है, तो उनके लिए हियरिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, उसी तरह हम सबको अपनी हियरिंग की इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए। और आपको पता है कि हम जब सुनते हैं तब समझते हैं, और समझते हैं तब बोलते हैं। तो अगर हम सुनाई की ध्यान नहीं रखेंगे, कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो अगर पढ़ा जाए तो 45% हम लिसनिंग करते हैं। तो अगर 45% हम लिसनिंग का ध्यान नहीं रखते हैं तो वो हमारे स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स पे अफेक्ट होता है, हमारे इंटरपर्सनल स्किल्स पे भी अफेक्ट होता है। तो हियरिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम ऑफ कोर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोगों से कनेक्ट होते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और हम एज ए ह्यूमन, हमको ये ब्रेन दिया गया है जो हम थिंकिंग के लिए यूज करते हैं। और आपको बताऊं कि स्टडी की गई है कि अगर हियरिंग अच्छा हो तो हमारी थिंकिंग स्किल्स भी अच्छी होती है। तो कम्युनिकेशन के लिए हियरिंग इम्पोर्टेंट है, और हियरिंग हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। Thank you, ma'am. We'd like to understand how our auditory system works. कि सो मैं ऑडियंस को बताना चाहती हूँ कि हम कान से सुनते हैं, वो साउंड वेव्स हमारे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जाता है, ये कनाल के थ्रू, और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इन 3 ऑसिकल्स को वाइब्रेट करता है, और वो वाइब्रेट करके कॉक्लिया और ब्रेन के नर्व्स के द्वारा ब्रेन तक मैसेज पहुंचाता है। अभी ये पूरी चीज जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। और अगर यहाँ पे कहाँ पे भी दिक्कत होती है तो हमें सुनाई में कम आता है। जैसे अगर कान में यहाँ पे वैक्स जमा हो, काफी सारे बच्चों, हम एक स्कूल में गए थे तो वहाँ पे 800 बच्चे थे, उसमें हमने हियरिंग स्क्रीनिंग की तो करीब 80% से ज्यादा बच्चों के कान में वैक्स था। और बहुत सारा वैक्स होने के कारण उनको अपना फीडबैक नहीं मिलता है, तो क्लास में परफॉर्मेंस में भी वो इश्यूज आते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कान में वैक्स ना हो। अगर वैक्स की वजह से 5 से 10% सुनाई कम हो जाती है। उसके बाद अगर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे यहाँ से कोल्ड और कफ होने के कारण पानी जमा होता है सर्दी के कारण, और उससे भी हमें 15 से 20% कम सुनाई देता है। तो अगर हम रिकरेंट कफ एंड कोल्ड का भी ध्यान नहीं रखते हैं बच्चों में स्पेशली, और 0 to 5 years बच्चे का सबसे ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, तो अगर उसमें वैक्स और मिडल ईयर फ्लूइड यानी कान में जो सर्दी जमा होती है उसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो उनके एजुकेशन में इफेक्ट होता है। आगे जाके बहुत सारे वैक्स और उसके कारण अलावा कॉक्लिया और नर्व्स के कारण भी हमें कम सुनाई देता है, जिसे हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस बोलते हैं। और उसके लिए हियरिंग एड और कॉक्लियर इम्प्लांट ही यूज किया जा सकता है। वैक्स निकाला जा सकता है, मिडल ईयर फ्लूइड का मेडिकल ट्रीटमेंट किया जा सकता है, लेकिन जो सेंसरी न्यूरल लॉस है उसके लिए हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये स्टडी बताता है कि जो सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है वो जेनेटिक इश्यूज के कारण हो सकता है, कॉन्सिक्वेंटिटी यानी सैम फैमिली में मैरिज हुआ उसके कारण हो सकता है, RH इनकॉम्पेटिबिलिटी के तरफ से हो सकता है, अगर हमें कुछ बीमारी होती है उसमें टॉक्सिक ड्रग यूज करने के कारण भी हियरिंग लॉस हो सकता है। तो ये सारे हियरिंग लॉस जो डायग्नोसिस और पता चलता है, और अगर उसमें हम ध्यान दें तो उसको हम रिपेयर भी कर सकते हैं, और डायग्नोस्टिक प्रॉपरली होता है तो उसको हम रिहेबिलिटेट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये जो प्रॉब्लम होता है हियरिंग लॉस का, अगर एक बच्चे को होता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, और अगर एक अडल्ट को होता है या फिर ओल्ड एज में, हम कहते हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है बॉडी वीक होता है, नस का वीकनेस बढ़ता है, तो इफ दिस इज नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली, एक प्रॉपर मेडिकल या रिहेबिलिटेटिव हम मेजर्स ना ले तो उसके क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं? सबसे पहले तो US, UK और बहुत सारी कंट्री में 2000 से नियोनेटल स्क्रीनिंग किया जाता है, यानी जो भी बच्चा हॉस्पिटल से बाहर निकलता है उसकी हियरिंग स्क्रीनिंग की जाती है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे अभी वो मैंडेटरी नहीं हुआ है, कंपलसरी नहीं हुआ है, पर हर एक बच्चा जो बर्थ लेता है उसके 24 घंटे में हम उनकी टेस्ट कर सकते हैं, और अगर टेस्ट करने के बाद विद इन 6 months उन्हें ट्रीटमेंट दी जाती है तो वो नॉर्मल के जैसे बिहेव कर सकते हैं, सीख सकते हैं और नॉर्मल एजुकेशन भी ले सकते हैं अगर विद इन 6 months। अभी यहाँ पे हमारे इंडिया में सिर्फ अभी भी मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन है कि अगर बच्चा 1.5 साल तक नहीं बोलता है तो कभी कभी बच्चे लेट सकते हैं, पर मेरे ख्याल से अगर 1.5 साल तक बच्चा नहीं सुनता है
तो सबसे पहले उसकी हियरिंग बोलता नहीं है तो उसके लिए सबसे पहले हियरिंग टेस्ट करना जरूरी है। और अगर जितना पीरियड डिले होता जाता है उतना बच्चे के एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज सब में इफेक्ट होता है। तो वो बढ़ के एजुकेशनल इश्यूज भी देता है, सोशल इश्यूज भी देता है और एम्प्लॉयमेंट इश्यूज भी लेके होता है। बिकॉज वो जो टाइम है उनका सुनने का वो बढ़ता जाता है तो उसमें ऑडिटरी मेमोरी रिड्यूस होती है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी जो भी ऑडियंस हमें सुन रही है कि आज से वर्ल्ड हियरिंग डे पे जब WHO ने डिक्लेयर किया है कि हमें अपने हियरिंग केयर फॉर ऑल ध्यान रखना चाहिए, तो हमारे बच्चों का हियरिंग स्क्रीनिंग करना जरूरी है। हियरिंग स्क्रीनिंग करेंगे और उनको 6 महीने में हम बेस्ट ऑफ द हियरिंग एज या कॉक्लियर इम्प्लांट दे सकते हैं तो अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो न्यू बॉर्न बेबीज में आगे जाके ये इश्यूज आ सकते हैं। अगर मिडिल एज ग्रुप में किसी एक्सीडेंट के कारण या फिर WHO वो भी बता रहा है कि बहुत सारे बिलियन लोग जो लाउड म्यूजिक सुनते हैं और हेडफोन्स बहुत बड़ी आवाज में सुनते हैं, तो बहुत सारे यंगस्टर्स को आगे जाके हियरिंग लॉस हो सकता है। दे आर प्रेडिक्टिंग बिलियंस ऑफ यंगस्टर्स विल बी अफेक्टेड बाय हियरिंग लॉस। तो मेरे ख्याल से आज के यंगस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए कि कितना हमें हेडफोन्स यूज करना है और इसको कितना करता है। बिकॉज अगर हियरिंग में दिक्कत आती है तो हमारे एम्प्लॉयमेंट में और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। और जो एडल्ट है जिनको एज के कारण हियरिंग लॉस हो रहा है, नर्व्स कमजोर हो रही है, तो आज डिजिटल टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट किया है कि आप नियर नेचुरल हियरिंग वापस ले सकते हैं। जैसे आईज में हम चश्मा पहनते हैं, लेग्स में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं, वैसे बेस्ट ऑफ द हियरिंग एड्स वर्ल्ड में अवेलेबल है। तो अगर उस टेक्नोलॉजी को राइट से यूज किया गया तो जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगी कि लता मंगेशकर की आवाज अभी तक अच्छी है, कितनी मीठी है, वो अपनी आवाज का कितना अच्छा ध्यान रखते हैं। तो अगर जीरियाटिक ग्रुप अगर उनका अपना हियरिंग का अच्छे से ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली थ्रू आउट द लाइफ वो प्लेजर ऑफ हियरिंग हियरिंग को एंजॉय कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, लोगों की बातें सुन सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं। और ये एक आई वुड से एक मिथ है या एक सोसाइटी में ये है कि अगर मुझे थोड़ा सुनाई दे रहा है तो इट्स ओके, थोड़ा आई एम जस्ट मिसिंग आउट लिटिल बिट, तो आई वुड वेट कि मुझे अभी काम चल रहा है, मैं सबसे बात कर पा रहा हूँ, मुझे एक दो बार रिपीटेशन की जरूरत पड़ रहा है, तो अगर मैं हियरिंग एड का लेने का डिसीजन अगर मैं थोड़ा पोस्टपोन करता हूँ तो क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात है या इसके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है? क्या होता है कि अगर मैं इमीडिएटली एक मशीन के लिए जाऊँ या फिर थोड़ा रुक के जाऊँ? बेसिकली पहले मिसकंसेप्शन ये था कि हियरिंग एड पहनने की क्या जरूरत है। यस, राइट। अगर हियरिंग एड पहना तो वो बहुत आवाज करता है और हमें आवाज में भाषा सुनाई नहीं देती है। तो मैं ऑडियंस को कहना चाहती हूँ कि जो अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी हियरिंग एड्स की आई है उसमें आवाजें कम हो जाती है, लोगों की भाषा ज्यादा सुनाई देती है। तो अगर आप लोगों की भाषा ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं तो हियरिंग एड जब आपको अफेक्ट होता है तो तुरंत क्यों नहीं यूज किया जा सकता है। जैसे अगर किसी को भाषा सुननी है तो 100% ही सुने ना, क्यों थोड़ा सुने और ज्यादा सुने। तो मेरे ख्याल से हम सारे ऑडियोलॉजिस्ट की तरफ से मैं ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि जो हियरिंग है आप वापस 100% ला सकते हैं बेस्ट टेक्नोलॉजी के कारण। तो क्यों उस जो टेक्नोलॉजी को हम अच्छे से इस्तेमाल न करें। हम टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, फोन में, सारे टीवी पे, सब जगह पे हम टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, तो हियरिंग एड में टेक्नोलॉजी क्यों ना अपनाएं। Yes. Okay. So thank you, ma'am. Thank you for answering those important, I would say, queries which many of our audience and viewers would be having. Thank you for explaining it in such a beautiful manner. Now I would halt and take some of the questions which we have received from our forum. We have received a questions from Pooja Singh. Is amplification devices recommended for recurrent ear discharge even after medication or surgery? डिस्चार्ज ENT की ऑफकोर्स हेल्प ली जा सकती है और अगर डिस्चार्जिंग ईयर होता है तो आप बिहाइंड द ईयर यानी कान के अंदर वाला या छोटा हियरिंग एड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, बट बिहाइंड द ईयर जिसमें आप मोल्ड पहनते हो हियरिंग एड बिहाइंड है, तो अगर आप जब डिस्चार्ज के साथ भी हियरिंग एड पहनते हो तो वो मोल्ड में
डिस्चार्ज जाता है, हियरिंग एड में नहीं जाता है। तो डेफिनेटली अगर डिस्चार्जिंग ईयर हुआ फिर भी आप अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी बिहाइंड द ईयर में यूज कर सकते हो। Thank you, ma'am, for answering that. We have a second question. This is from Mr. Vikram. Can hearing loss be cured permanently? आई वुड से दैट 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मैं सच में बताऊं तो जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन है उन सबके पास हियरिंग होती है। यानी मैंने एक भी पर्सन नहीं देखा है जिसको 0% हियरिंग हो। Okay. यानी 5%, 10%, 15% जो बच्चों में बोल रही हूँ या एडल्ट पीपल में भी। तो अगर राइट टाइम पे हियरिंग एड यूज किया गया, यानी 0 to 2 इयर्स में बच्चों को हियरिंग एड या कॉकलियर इम्प्लांट लगाया गया, तो वो डेफिनेटली 90% बेनिफिट हो सकते हैं। हम एज ए नॉर्मल पर्सन के पास भी 95 to 100% हियरिंग होती है। तो अगर हमने राइट टेक्नोलॉजी और राइट हियरिंग एड यूज किया तो या कॉकलियर इम्प्लांट यूज किया तो करीब 90 to 95% हम अचीव कर सकते हैं। और स्पेशली एडल्ट की बात करें तो एडल्ट को हमारे ब्रेन में नॉलेज है लैंग्वेज का, तो काफी टाइम हम कॉम्पनसेट करते हैं। यानी पूरे वाक्य में अगर 2 शब्द भी समझ में आए तो हम सुन के समझ जाते हैं। पर अगर हियरिंग एड पहना गया हमारी जरूरत है तो पूरा सुन सकते हैं, यानी प्लेजर ऑफ हियरिंग ले सकते हैं। तो ऐसा है कि 30 इयर्स के एक्सपीरियंस में मैं तो बता सकती हूँ कि करीब 99% लोगों को हियरिंग हमने वापस दी है। Okay. That's a very good number. यस। Okay. So we have received a second question, or third question. Geriatrics are often neglected or ignored their health at their ear health. Do they really need hearing aids? ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जेरियाटिक पॉपुलेशन जैसे रिटायरमेंट हो जाता है, और मैं तो चाहती हूँ कि हम यंगस्टर्स और जो मिडिल एज ग्रुप है वो काम में इतनी उलझी रहती है, उनको बोलने का किसी से और सोशल कनेक्शन करने का टाइम नहीं होता है। और मैं चाहती हूँ कि जीरियाटिक ग्रुप जो है जो रिटायर्ड होता है उसको सोशल लाइफ एंजॉय करने का सही टाइम है। तो अगर उस टाइम पे वो हियरिंग एड इस्तेमाल नहीं करेंगे तो लोगों से कनेक्शन कैसे कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जीरियाटिक ग्रुप को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, रादर अच्छी सुनाई लेके जो लास्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है उसको पूरा एंजॉय करना चाहिए। क्यों नहीं कर सकते हैं? Yes, it is rightly said कि you have a lot of time and lot of money, so you can enjoy your life. Yes. But आप नहीं सुन पा रहे हो तो आप एंजॉय भी नहीं कर Yes. पाओ। Very good point. We'll go to our next question. How to find if a child is benefited with hearing instrument? Of I course would say उसके this is a common question for many of our viewers. यस मैं व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि अगर सबसे पहले ये एक जो कंसेप्ट है मैं काफी सारे पेरेंट्स के साथ डिस्कस करती हूँ कि आपको यह नहीं देखना है कि बच्चे को हियरिंग लॉस कितना है, आपको ये देखना है कि आपके बच्चे के पास हियरिंग कितना है। तो सबसे पहले आप ईएनटी ऑडियोलॉजिस्ट को कंसर्न करके उनके पास हियरिंग कितना है वो जानने की कोशिश करिए। शायद उनको 5% हियरिंग हो, 10% हियरिंग हो, 15% हियरिंग हो, और उस हिसाब से करेक्ट हियरिंग एड उनको देने से उनको फायदा हो सकता है। और एक दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि जब बच्चों को मशीन लगाओ या कॉकलियर इम्प्लांट लगाओ तुरंत बच्चा सुनना चाहिए और समझना चाहिए और बोलना चाहिए। तो ये ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगी कि कोई नॉर्मल बच्चा भी जन्म लेने के बाद तुरंत बोलता नहीं है, उसको 9 मंथ्स लगते हैं सबकी बातें सुनने को, समझने को और बोलने को। तो अच्छा हियरिंग एड लगाने के बाद ऑफ कोर्स ऑडियोलॉजिस्ट टेस्ट करते हैं तो उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, आपको उनसे बात करनी चाहिए। और दूसरा एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि जब हम डेफ बच्चों को देखते हैं तो थोड़े थोड़े शब्द में बात करते हैं, तो उनके साथ पूरा कम्युनिकेशन करेंगे तो शायद 0 to 9 मंथ्स में आपको उनमें काफी प्रोग्रेस दिखाई देगा। तो अगर 6 मंथ्स में प्रोग्रेस नहीं दिखाई दिया तो आप वापस जाके प्रोफेशनल को कंसल्ट कर सकते हो। लेकिन अगर पेशेंस के साथ, अच्छी हियरिंग एड और कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप उनसे बात करना चाहो तो डेफिनेटली उनमें प्रोग्रेस हो सकता है विद इन 9 मंथ्स। Thank you, ma'am. Thank you for answering.
and I would say like there's a very positive approach. Like no doubt you are the author of spreading positivity book. Like the world is saying कि मुझे इतना hearing loss है, but you are saying कि हमें ये देखना है कि कितना hearing हमारा बाकी है. Yes. That's a very good approach of seeing a hearing loss and a hearing which a person has. So with that, we'll go to the next question, which we have received from Mohit Prajapati. How to select a right hearing aid for me? Like, is it like a person, like if I have hearing loss, I need to select a good hearing aid for me, or an audiologist would select it for me? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप प्रोफेशनल के पास जाते हो तो प्रोफेशनल में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो हमारे पास राइट हियरिंग एड हमारे लिए पसंद करें. और जैसे हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अगर हमें बाईपास सर्जरी करनी होती है, हमें बाईपास ही सर्जरी करनी होती है, उसमें एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी नहीं चलती है. उसी तरह हियरिंग एड में भी अगर प्रोफेशनल आपको रिकमेंड करते कि ये हियरिंग एड आपके लिए राइट है, तो वो हियरिंग एड एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करना चाहिए. अगर आप रियली टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉइजी इन्वायरमेंट में कितना अच्छा आप हियरिंग एड के साथ सुन सकते हो. तो अगर राइट हियरिंग एड ये होता है जो आपको नॉइजी एनवायरनमेंट में भाषा जो आपको पहले सुनाई दे रही थी वैसी ही आपको सुनाई दे. ऑफकोर्स वो नॉर्मल नेचुरल 100% तो नहीं हो सकती है, पर करीब 90-95% तो अचीव कर ही सकते हैं. ओके, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड दिस लिटिल फर्दर कि जैसे अभी राइट हियरिंग एड की बात की जा रही है, तो अभी जैसे मार्केट में जो भी हियरिंग एड्स आज के डेट में अवेलेबल है, और डिजिटल हियरिंग एड दैट कैन रेंज फ्रॉम 15 to 20,000 एंड इट कैन गो टिल 3 lakh 3.5 lakh. सो if like I have a hearing loss, if I am getting benefit out of a 20,000 hearing aid, so is it really needed कि मुझे 3 लाख वाले hearing aid का जरूरत है? तो मुझे कब कौन सा hearing aid जरूरत पड़ेगा, और कौन से पेशेंट को कौन सा वाला जरूरत पड़ सकता है? यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ऑफ कोर्स हियरिंग एड रेंज के साथ बनाया गया है 15,000 से लेके 3 लाख तक. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपकी हियरिंग कब हुई, आपका ड्यूरेशन हियरिंग लॉस का कितना टाइम रहा है, आपका ब्रेन सुनना और समझना परसीव कर रहा है कि नहीं. तो अगर 15,000 का हियरिंग एड आपको अच्छी सुनाई देता है और आपकी सेंसिटिविटी बाहर की आवाज को सहन करके और स्पीच सुनने के लिए राइट है, तो आप 15,000 का हियरिंग एड भी ले सकते हो. लेकिन अगर बाहर की आवाज में आपको 15,000 हियरिंग एड के साथ भी भाषा सुनाई नहीं दे रही है, तो उसका लेने का मतलब नहीं है. तो हियरिंग एड सिलेक्ट करने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व करते हैं. आप किस एनवायरनमेंट में काम करते हो, आप कितना स्पीच अच्छे से परसीव करते हो, आपकी जरूरियात क्या है, कम्युनिकेशन एफिशिएंसी क्या है, ये सब पे डिपेंड करता है. तो ये बहुत सारे फैक्टर्स अगर आप प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस करते हो तो वो इकोनॉमिकली आपको बैलेंस करके राइट हियरिंग एड आपको कौन सा चाहिए वो आपको बता सकते हैं. ओके, सो लाइक इन शॉर्ट कि हमें ये डिसीजन एक ऑडियोलॉजिस्ट पे हमें दे देना चाहिए कि ही वुड सजेस्ट व्हाट इज गुड फॉर मी. आई वुड नॉट से ऑडियोलॉजिस्ट, इवन ऑडियोलॉजिस्ट और क्लाइंट दोनों को मिलकर डिसीजन लेना चाहिए कि उनके लिए क्या एफिशिएंट चीज है. ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर आंसरिंग दैट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. We'll go to our next. There's hardly any time left, but I would take one or two. There's a thing like, can a 3-month-old baby be tested for a hearing loss? एज आई सेड कि जो बेबी बर्थ होता है उसके 24 घंटे में आप टेस्ट कर सकते हो, तो डेफिनेटली 3-month-old बेबी का आप हियरिंग टेस्ट ही कर सकते हो. एक चीज होनी चाहिए कि उसका हियरिंग ईयर्स जो होता है क्लीन होना चाहिए. और प्रोफेशनल ऑडियोलॉजिस्ट एक टेस्ट करता है जिसको ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस बोलते हैं, OAE टेस्ट. वो टेस्ट में आप ट्यूब अंदर रखते हो तो वो बताता है पास या रेफर. यानी उस टेस्ट के आपको पता चलता है कि बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है कि नहीं है. और अगर नॉर्मल नहीं है तो उसको पैरा टेस्ट, आगे दूसरे टेस्ट डायग्नोस्टिक करके ऑडियोग्राम 2.5 में करके आप करीब 1 year में कंफर्म कर सकते हो कि कितना हियरिंग लॉस हो सकता है. तो वो सो टेस्ट प्रोसीजर्स है वो आपको इम्प्लीमेंट करनी होती है. Thank you, ma'am, for answering that. I would take one last question for this session. That question has come from Upal Priya Shivan. Is it possible to have a hearing loss in only 1 year? हाँ, पॉसिबल हो सकता है. कई टाइम हमने बर्थ के वक्त भी 1 year में हियरिंग लॉस देखा है. कुछ बीमारी के कारण भी एक साइड हियरिंग लॉस हो सकता है,
किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण भी एक कान में हियरिंग लॉस हो सकता है। उसके लिए भी सॉल्यूशन क्रॉस हियरिंग एड का अवेलेबल है कि आप एक साइड हियरिंग एड पहन सकते हो और जो कान आपका डेड ईयर हो गया है, एक ईयर जो काम नहीं करता है, वो आप क्रॉस हियरिंग एड पहन सकते हो, तो दोनों साइड से आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। यानी सारे हियरिंग प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस अवेलेबल है। Thank you, ma'am. With that, I would like to end this session here. And thank you for answering that all the questions from all our viewers. There are many questions which has left unanswered, but respecting the time, we need to stop here. And on behalf of Widex India Private Limited, I would like to thank you for giving your precious time. It was very hard to get your time. So I would like to thank you personally for this session. And on behalf of Widex India Private Limited, a very happy World Hearing Day to you. Again, thank you to Widex for inviting me, and thank you Manish for having such a wonderful session, and thank you audience for listening us. And we, on behalf of Manish and me, a special greetings on World Hearing Day. Okay. Happy hearing. Happy hearing. Thank you all the viewers who have joined us today. This was the end of our first session, but similarly we have more 3 sessions lined up for the day. So I would request everyone to get tuned to our FB page, and we would be getting live once again at 2 p.m. sharp. Thank you for joining us. Thanks a lot. Bye bye. Bye.